ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ଟି ତୁମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ଟି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ବା ଇଂରେଜ ଆଉ ମୈଶୂର ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବା ହାଇଦର ଅଲି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅବୋଧର କଥା, ବିଶେଷ କରି ଆଉ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଯେତିକି ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଉପରେ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ଟି ଅଛି। ସୋ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ ତୁମର ମାନେ BA MA ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ସାବିତ ହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, What was the condition of India at the time of arrival of Warren Hastings? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ତମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ନେଉଛି 1 ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, 2 ଭେରି ଡିପ୍ଲୋରେବଲ୍, 3 both 1 and 2, 4 none of them। ପ୍ରଥମରେ ରହୁଛି ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ବହୁତ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଉଭୟ ବୋଥ୍ 1 and 2, ଫୋର୍ଥ ରହୁଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ବା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲାଏ, କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେଉଛି ଭେରି ଡିପ୍ଲୋରେବଲ୍ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଭାରି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ହାଇଦର ଅଲି ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୌଜଦାର ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସୋ ହାଇଦର ଅଲି କେବେ ଫୌଜଦାର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ହାଇଦର ଅଲି କେବେ ଫୌଜଦାର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ତମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 1752 AD, 2 1753 AD, 3 1754 AD, 4 1755 AD। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ, କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେଉଛି 4 1755 AD। 1755 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ଫୌଜଦାର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର ରହୁଛି, ହାଇଦର ରୋଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ହାଇଦର ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଡିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ମରାଠାଜ୍, ମରାଠାମାନଙ୍କର ପରାସ୍ତ। ସେକେଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍ ଅଫ୍ ନିଜାମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ଥାର୍ଡ଼ ୱିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଗଲ୍ସ, ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ କାରଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ, କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ କାରଣ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ କାରଣ, ଯେମିତିକି ମରାଠାମାନଙ୍କର ପରାସ୍ତ, ନିଜାମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଇତ୍ୟାଦି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଫୋରଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତୁମର, ହୁ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୈଶୂର ୱାର୍। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି, ହୁ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୈଶୂର ୱାର୍। ପ୍ରଥମ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ? ତମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି
वन द इंग्लिश, सेकेंड द निजाम, थर्ड हैदर अली, फोर्थ द मराठाज। आउ थे उत्तर पर ऑप्शन कही रखुची, वन द इंग्लिश, सेकेंड द निजाम, थर्ड हैदर अली, फोर्थ द मराठाज। ताले सठिक उत्तरटी कौन पिलाए किए कहीपर? सठिक उत्तरटी तुम हूँ थर्ड हैदर अली। ठीक अच्छे, हैदर अली प्रथम मैसूर युद्ध रे विजय लाभ करते। परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्नटी तुम रोचे द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन डैश। द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन डैश बा रेगुलेटिंग आईन केबे पास होइतिला? तमर उत्तर रे ऑप्शन रोची 1 1773 AD, 4 सॉरी सेकेंड 1774 AD, थर्ड 1775 AD, 4 1776 AD। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहीपर? सठिक उत्तरटी कौन हम किए कहीपर? सठिक उत्तरटी तुम हूँ 1 1773 AD 1773 ख्रीष्टाब्द 1773 मसीह रेगुलेटिंग आईन टी पास होता। परवर्ती प्रश्न को जीवा आम। परवर्ती प्रश्नटी हूँ चीफ एम ऑफ पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट वाज। जो रेगुलेटिंग आईन प्रणयन करा जायतिला तार मूल लक्ष्य कौन थिला, मुख्य लक्ष्य कौन थिला? तमर उत्तर पाई ऑप्शन रोची 1 टू लुक इनटू द मैटर ऑफ द कंपनी, सेकेंड टू एस्टाब्लिश कंट्रोल ऑन कंपनी, थर्ड टू हेल्प द कंपनी, फोर्थ नन ऑफ देम। ताले सठिक उत्तरटी कौन हम? सठिक उत्तर पाई तुम ओडिया ऑप्शन टी आउथरे कही रखुची, कंपनी रो जो काम को ताकू अनुध्यान करिबा, कंपनी उपरे नियंत्रण रक्षा करिबा, नियंत्रण प्रतिष्ठा करिबा। तृतीय थिला कंपनी को साहाय्य करिबा। चतुर्थ थिला नन ऑफ देम बा उपरोक्त मध्य केउठी नुहे। ताहले सठिक उत्तरटी कौन हो पिला किए कहीपर? सठिक उत्तरटी होची तुमर सेकेंड टू एस्टाब्लिश कंट्रोल ऑन कंपनी, कंपनी को नियंत्रण को आनिबा बा कंपनी उपरे नियंत्रण प्रतिष्ठा करिबा। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्नटी तुम रोचे गोटे कोटेशन क्वेश्चन। ठीक अच्छे, किए कही कथा तुम कह वी नाउ आर्म विथ यू फुल पावर्स टू मेक ए कंप्लीट रिफॉर्मेशन। किए कही आमे तुमको बलशाली कराऊँ सबु प्रकार शक्ति दे गोटे पूर्ण संस्कार आनिया पाई। ठीक अच्छे, ताहले एक कथाटी किए कही? तमर उत्तर रे ऑप्शन रोची 1 द एम्परर, सेकेंड द क्वीन, थर्ड द कंपनी, फोर्थ नन ऑफ देम। सम्राट कही इंग्लैंड सम्राट कही, सेकेंड रोचे ना राणी कही इंग्लैंड राणी कही, ना थर्ड रोचे द कंपनी कंपनी कही, ना फोर्थ रे उपरोक्त मध्य केउटी नुहे। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिला किए कहीपर? सठिक उत्तरटी कौन हम? सठिक उत्तरटी तुम होची द कंपनी, थर्ड। ठीक अच्छे, तृतीय नंबर ऑप्शन जो रोची कंपनी कही जे आमे तुमको माने शक्तिशाली कराऊँ जो सब प्रकार साहाय्य जोगे जे कंपनी गोटे कंप्लीट रिफॉर्मेशन आनिया पाई गोटे संस्कार आनिया पाई। ठीक अच्छे, परवर्ती प्रश्न को जीवा आम। परवर्ती प्रश्नटी रोची ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ हेस्टिंग्स द रेवेन्यू वाज रिसीव्ड बाय। हेस्टिंग्स गवर्नरशिप बेले रेवेन्यूटा कहा द्वारा रिसीव करा जाउथला? हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर समय रे रेवेन्यू किए कलेक्ट करुले बा रेवेन्यू को किए संग्रह करुले? ताले उत्तर रे कौन कहीपर? आम उत्तर पाई ऑप्शन कौन रही? उत्तर रे ऑप्शन रही 1 रही अमिल्स, सेकेंड कलेक्टर्स, थर्ड कंट्राक्टर्स, फोर्थ हूँ नन ऑफ देम। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिला किए कहीपर? सठिक उत्तरटी हूँ तुम कलेक्टर्स। ठीक अच्छे, सो
कलेक्टर मानू जो टैक्स कलेक्शन दि जाइथिला बा रेवेन्यू कलेक्शन तांको दि जाइथिला दायित्व एवं से माने ही रिसीव करते बर्तमान मध्य से सिस्टमटा आमर जो कलेक्टर जो आम देखुंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस पाइला परे जो सब अपॉइंटमेंट होती सो ये जो कलेक्टर टर्मटा हूँ टू कलेक्ट एक्चुअली इन दैट सेंस एट दैट पीरियड इट वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू जो मैंने कलेक्ट करुले कलेक्टर कह जाऊला बट नाउ द स्कोप हैज बीन ब्रोडन सो तार स्कोपटा बहुत माने ब्रोड हो जाइए ब्रोड टर्म रे एबेकर जो आम जो आईएएस माने होती कलेक्टर टर्मटा तांकर बहुत माने क्षमतार सीमा बहुत बढ़ी जाइए ठीक अच्छे बहुत दायित्व रही से मानकर गोटे जिला प्रशासन को देखिबा ठीक अच्छे आम परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न तुम्हारा रोची Hastings firmly laid the foundation of civil administration in which the superstructure was raised by Cornwallis, who said it. किए कहिथिले हेस्टिंग्स जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिष्ठा करथिले तार मूलदुआ प्रतिष्ठा करथिले जहाँ उपरे कि कॉर्नवालिस निजकू छिड़ा करि पारिथिले ठीक अच्छे सो ये कथाटी किए कहिथिले तमर उत्तर पर ऑप्शन नौची 1 V.A. स्मिथ 2 हंटर 3 हुटर 4 मुइर ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी कौन हो सठिक उत्तरटी तुमर होची हुटर सो से कही जे माने जो वारेन हेस्टिंग्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मूलदुआ पकई जहाँ उपरे कि कॉर्नवालिस निजको प्रतिष्ठा करि पारिथिले परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्नटी तुम रोची व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स जो इम्पीचमेंट अर्थ होचे महाभियोग वारेन हेस्टिंग्स का एगेंस्ट रे बा वारेन हेस्टिंग्स का विरुद्ध रे जो महाभियोग आसीथिला तार शेष फलाफल कौन थिला तमर उत्तर पर ऑप्शन रोची 1 ही वाज कन्विक्टेड तांको दोषी साब्यस्त करागला 2 ही वाज अक्यूटेड तांको छाड़ी दिया गला 3 ही वाज हैंग्ड तांको फांसी दिया गला 4 होची नन ऑफ द अबव ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहि परिबो आउ थरे प्रश्नटी पढ़ी रखुची जे वारेन हेस्टिंग्स कर जो इम्पीचमेंट बा महाभियोग आसीथिला तांको नारे तार फाइनल रिजल्ट कौन है बा तार शेष फलाफल कौन है ताले सठिक उत्तरटी किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी होची ही वाज अक्यूटेड तांको अक्यूट करा जाइथिला एथरे एवं परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा परवर्ती प्रश्नटी होची तुमरा The decisive battle between the Rohillas and the combined forces of the Nawab and the English fought at dash. So जो रोहिला एवं नवाब एवं इंग्लिश मानक सहित जो ताकर जो कंबाइंड फोर्सेस एवं रोहिला मानक भितर जो निर्णयात्मक जो युद्ध होइतिला सेटा केउठारे होइतिला ताले सठिक उत्तरटी कौन हम सठिक उत्तर पाई तुमर ऑप्शन रोची मीरनपुर काटरा सेकंड रोचे रामपुर थर्ड रोची शाहजहानपुर फोर्थ रोची नन ऑफ द अबव ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहि परिबो सठिक उत्तरटी होची मीरनपुर काटरा ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा परवर्ती प्रश्नटी तुमर रोची condemning the policy of Hastings who wrote Hastings deliberately sold away the lives and liberty of the people of the free people to the Nawab of Awadh हेस्टिंग्स कर नियम को समालोचना करी किए लिखिथिले जे हेस्टिंग्स स्वेच्छाकृत भाव बा निज इच्छा साधारण लोकंकर जीवन एवं ताकर स्वतंत्रता को
ନବାବଙ୍କ ହାତରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ତମର କିଏ ଏଇ ଟର୍ମଟି କହିଥିଲେ ବା କେଉଁମାନେ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ? ତମର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 ବ୍ୟୁର୍, ସେକେଣ୍ଡ ମିଲ୍, ଥାର୍ଡ ମାକୁଲେ, ଫୋର୍ଥ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥ୍ରୀ ବା ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ଜଣ ଯାକ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେବ ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ। ଉପରୋକ୍ତ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏଇ କଥାଟି ଲେଖିଥିଲେ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ ଜାଣିଶୁଣି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ନବାବଙ୍କ ହାତରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର ରହୁଛି who has remarked it that Nandakumar was murdered with the consent of law? किए रिमार्क देथिले बा किए मंतव्य देथिले जे नंदकुमार आईन रो सम्मति क्रमे तांको मारी दिया जाइथिला। ठीक अछि, आईन रो सम्मति रे नंदकुमार को मारी दिया जाइथिला। ताले सठिक उत्तरटी कौन हबो? सठिक उत्तर पाई तुमरा ऑप्शन रहउची 1 मिस्ट्रेस बिब्रेज, सेकेंड डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, थर्ड डॉक्टर BL ग्रोवर, फोर्थ डॉक्टर VS स्मिथ। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिला? किए कहि परिबो? सठिक उत्तरटी होची तुमरा मिस्ट्रेस बिब्रेज। सो मिस्ट्रेस बिब्रेज माने मंतव्य देथिले जे नंदकुमार को आईन सम्मति द्वारा मारी दिया जाइथिला। ठीक है, परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्नटी रहउची हेस्टिंग्स रॉब्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू कलेक्ट मनी फॉर द कंपनी? काहाकू हेस्टिंग्स काहाकू दଳି ଦେଇଥିଲେ? निम्नलिखित व्यक्ति मानक मध्य काहाकू दଳି ଦେଇଥିଲେ कंपनी रो पैसा कलेक्शन पाई बा टंका कलेक्शन पाई? तुमको उत्तर देवा पाई ऑप्शन रहउची 1 नंदकुमार, सेकेंड राजा चेत सिंह, थर्ड बेगम सपावत, फोर्थ ऑल द थ्री। ठीक है, तुमर उत्तर पाई ऑप्शन कहीदेली। फर्स्ट हूँ नंदकुमार, सेकेंड राजा चेत सिंह, थर्ड बेगम सपावत, फोर्थ हूँ ऑल द थ्री। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? सठिक उत्तरटी हूँ ऑल द थ्री। उपरोक्त तीनोटी जाक कारण तीनोटी जाक जो तीन जन व्यक्ति थे, नंदकुमार थे, राजा चेत सिंह थे, अवधर बेगम माने थे, मैंने समस्त को माने हेस्टिंग्स दौड़ी देते बहुत निष्पेषित करते, हैरान करते पैसा कलेक्शन कंपनी रो पैसा कलेक्शन पाई। परवर्ती प्रश्न को आमे जीवा। परवर्ती प्रश्नटी तुमर रहउची Why did the soldier of Awadh make a revolt against Hastings? हेस्टिंग्स के विरुद्ध रे अवधर सैनिक माने कहीं विद्रोह करथिले? ठीक अच्छे, तमर उत्तर ऑप्शन रहउची विंग टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ राजा चेत सिंह, राजा चेत सिंह कर बंदी जोगु, ड्यू टू सेकंड रहउची ड्यू टू इंसल्टिंग राजा को अपमान देथिबारु, थर्ड रहउची ड्यू टू हेस्टिंग्स प्रेशर पॉलिसी, हेस्टिंग्स कर जो चाप पॉलिसी जोगु, चाप नीति जोगु, फोर्थ होची ऑल द थ्री। उपरोक्त तीनोटी जाक कारण। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिला? किए कहि परिबो? सठिक उत्तरटी होची तुमर ऑल द थ्री। उपरोक्त तीनोटी जाक कारण जोगु अवधर सैनिक माने हेस्टिंग्स का विरुद्ध विद्रोह करथिले। परवर्ती प्रश्न को आमे जीवा। परवर्ती प्रश्नटी होची द बेगम्स ऑफ अवध वेर मालट्रीटेड बाय। अवधर बेगम माने कहा द्वारा माल ट्रीटेड होते बा खराब भाव में विनियोग होते बा कहवा मिस यूटिलाइज मैंने खराब भाव व्यवहृत होते कहीपर। ताहले उत्तर पाई तुम ऑप्शन रोची 1 वेल्सली, सेकेंड हेस्टिंग्स, थर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस, फोर्थ सर जॉन सोर। बा तांकु ये आम उत्तर आउ थे प्रश्नटी कही रखुची अवधर बेगम मानू किए दुर्व्यवहार करते? ठीक है, ये हम सठिक प्रश्न। तुम
ଅଭଦ୍ର ବେଗମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅପସନ୍ କହିଦେଲି ଅଲରେଡ଼ି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଅଭଦ୍ର ବେଗମ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ ହୋଲ୍ ବିଜନେସ୍ ୱାଜ୍ ଅନଡାଉଟେଡଲି sordid, shabby and a slur on the character of Hastings. Who remarked it? କିଏ କହିଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ନିଃସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଭାବେ ଏକ ଦୁଃଖଦ, ମଳିନ, କୁତ୍ସିତ ଏବଂ ଆକ୍ଷେପ ମାନେ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏକ ମଳିନ, ଦୁଃଖଦ, କୁତ୍ସିତ ଏବଂ ଆକ୍ଷେପାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କିଏ ଏକଥା କହିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 ସରକାର ଏନ୍ ଦତ୍ତ, 2nd V.S. ସ୍ମିଥ, 3rd ଡକ୍ଟର ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ, 4th ଡକ୍ଟର B.L. ଗ୍ରୋଭର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ହେଉଛି ସରକାର ଆଣ୍ଡ ଦତ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାର ଏବଂ ଦତ୍ତ ବହିରେ ଏହି କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର ରହୁଛି ହୁ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ 1771? ଶାହ ଆଲମକୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କିଏ 1771 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ? ତମର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 ମାଧୋଜୀ ସିନ୍ଧିଆ, 2nd ଯଶୱନ୍ତ ରାଓ ହୋଲକର, 3rd both 1 and 2, 4th none of them। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁମର 3rd both 1 and 2, ମାଧୋଜୀ ସିନ୍ଧିଆ ଆଣ୍ଡ ଯଶୱନ୍ତ ରାଓ ହୋଲକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହୁ ସକ୍ସିଡେଡ୍ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ଅବଧ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ନୱାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା? ନୱାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବଧର ସିଂହାସନ କିଏ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତୁମର ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 ଆସଫୁଦ୍ଦୌଲା, 2nd ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା, 3rd ଆତମଦୁଲ୍ଲା, 4th ନାସିରୁଦ୍ଦୌଲା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆସଫୁଦ୍ଦୌଲା। ଆସଫୁଦ୍ଦୌଲା ନୱାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବଧର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଫୈଜାବାଦ ୱାଜ୍ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ନବାବ ଆଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍? ନବାବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫୈଜାବାଦ ଟ୍ରିଟି ବା ଫୈଜାବାଦ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତମର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି 1 1774 AD, 2nd 1775 AD, 3rd 1776 AD, 4th 1777 AD। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ତୁମର 1775 AD, 1775 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1775 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଫୈଜାବାଦ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ନବାବ ଆଉ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଭିତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର ରହୁଛି ଦ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସଲାବାଇ concluded in 1782 AD between ପୁନା ଦରବାର and the English were? ଯେଉଁ 1782 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଲାବାଇ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସେ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ପୁନା ଦରବାର ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତୁମର ଉତ୍ତରରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଏ ସାଲସେଟ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ବ୍ରିଟେନ୍, ସାଲସେଟ୍ ବ୍ରିଟେନକୁ ଦିଆଗଲା। 2nd ଦ ଇଂଲିଶ ଗେଭ୍ ଅପ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଘବ ରାଓ, ରାଘବ ରାଓଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବା ସମର୍ଥନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କଲେ। 3rd ସିନ୍ଧିଆ ରିଗେନ୍ଡ ହିଜ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯମୁନା ରିଭର, ସିନ୍ଧିଆ ଯମୁନା ନଦୀର ପଶ୍ଚିମରେ ନିଜର ଟେରିଟୋରୀ ବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। 4th ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି
for all the three. So उपरोक्त तीनोटी कारण सॉरी उपरोक्त तीनोटी टर्म बा जो टर्म थिला मुख्य टर्म थिला जो ट्रिटी ऑफ सालावेरा। परवर्ती प्रश्न को जीवा हमें। परवर्ती प्रश्न टी तुम रोची द सेकंड मैसूर वाज फॉट द सेकंड मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन डैश माने द्वितीय मैसूर युद्ध केबेरु केबे भितर संगठित होइथिला। तो 1 रे होची 1779 to 1780 AD, सेकंड होची 1780 to 1782 AD, थर्ड होची 1781 to 1783 AD, फोर्थ होची 1782 to 1783 AD। ताहले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाई किए कहि परिबो? सठिक उत्तरटी किए कहि परिबो? तुमरा एई जो सेकेंड मैसूर वार केबे संगठित होइतिला केते को वर्ष रु केउ वर्ष भितर संगठित होइतिला? द्वितीय मैसूर युद्ध। ठीक अछि, द्वितीय मैसूर युद्ध केबे रु केबे मध्य रे होइतिला? तमरा उत्तर सठिक उत्तरटी होछि तुमरा 1780 रु 1782 AD। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न टी तुम रोचे हैदर अली ब्रेथ्ड हिज लास्ट इन 1782 AD ड्यू टू। हैदर अली 1782 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले केउ कारण जो? तमर उत्तर रे ऑप्शन रोची 1 कैंसर, सेकंड इन्वेजन ऑफ द इंग्लिश, थर्ड प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस, फोर्थ नन ऑफ देम। तमरा उत्तर ऑप्शन कहली कैंसर रोग जोगु, इंग्रेज द्वितीय रोचे इंग्रेज मानकर आक्रमण जोगु, अधिक दिन असुस्थ होगा जोगु थर्ड रे, फोर्थ रोचे नन ऑफ देम उपरोक्त मध्य केउटी नुहे। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहि परिबो? सठिक उत्तरटी तुम रोची 1 कैंसर। ठीक अछि, कैंसर जोगु से मृत्युवरण करथिले। परवर्ती प्रश्न को जीवा हमें। परवर्ती प्रश्नटी तुम रोची Hastings was one of those efficient persons who handed over the Indian power to the English. Who remarked it? किए मंतव्य देइथिले जे हेस्टिंग्स होचंती दक्ष व्यक्ति मानक मध्यरु जणे जे कि भारतर जो साम्राज्य को इंग्रेज मानकु हस्तांतर करिथिले। ठीक अछि, ताले सठिक उत्तर पाइ तोर ऑप्शन रहउची 1 क्लाइव, सेकंड हेस्टिंग्स, थर्ड कर्जन, फोर्थ कर्नवालिस। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए किए कहि परिबो? किए एई रिमार्कटी देइथिले? ऑप्शन तम उत्तर होउची ठीक उत्तरटी होउची कर्जन। कर्जन रिमार्क देइथिले जे हेस्टिंग्स सेही दक्ष व्यक्ति मानक मध्यरु जणे थिले जे कि इंग्रेज को भारतीय साम्राज्य हस्तांतर करिथिले। परवर्ती प्रश्न तथा शेष प्रश्न आजिर सेठी होउची तुमरा the Treaty of Salabai formed a turning point in the history of English supremacy in India. Who wrote it? किए लिखिथिले सलाबाई चुक्ति भारतीय इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ थिला एवं विशेषकर इंग्रेज मानकर भारत वर्ष रे जो सुप्रीमासी बा कर्तृत्व जो सेटा किए टर्म टी कहथिबा किए जो रिमार्क टी देइथिले कि बा किए लिखिथिले कथाटी। तमर उत्तर पाए ऑप्शन रहउची 1 V.S. स्मिथ, सेकंड लैंडपोल, थर्ड डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, फोर्थ डॉडवेल। ताले सठिक उत्तरटी कौन हो पिलाए? सठिक उत्तरटी हबो 4 डॉडवेल। तो एति सहित आज तुमरो जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट समाप्त होईची। सो आउ थे कहि रखुची जो मैंने मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करना हो से मैंने सब्सक्राइब करिबो एवं तुम सांग मानक भितर शेयर करिबो, कमेंट करिबो एवं कौन भलो आउरी ही परिबो से विषय रे निजर मतामत दबो। ठीक अछि, धन्यवाद।